Dear students, Assalamu alaikum to all of you. Here I am Khazar Muhammad Sheikh, available for 12th Commerce. Subject is accountancy. Dear students, as you already know, and I have discussed with you the maintenance of partners' capital accounts and also distribution of profits among the partners. Moreover, I have already discussed with you about the profit and loss appropriation account. But today I have chosen a practical problem from your textbook, textbook that's written by Vassan, and this question figures at serial number 23. You first go through the contents of the question, then we will deliberate about this question. Here A and B, they started a partnership business on 1st January 2019. Their capital contributions were 20,000 and 1,50,000 respectively. The partnership deed provides for number 1, interest on capital at the rate of 10%. Number 2, A to get a salary of rupees 2,000 per month. The profits for the year ended 31st December 2019 before making appropriations were 2,16,000. Interest on drawings 2,200 for A and rupees 2,500 for B. We have to prepare here profit and loss appropriation account. But for your convenience, I will also show you how to prepare the capital accounts of the partners. What I discussed in the maintenance of partners' capital and distribution of profits and profit and loss appropriation account, that was theory. Now practically I am going to demonstrate this and to show you how to prepare this profit and loss appropriation account and this partners capital accounts. तो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended 31st December 2019. तो यहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे. ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड. यहां पर हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर हम लिखेंगे रुपीज, अगेन पर्टिकुलर्स क्रेडिट साइड में, फिर रुपीज. तो चूंकि ए और बी इन्होंने जो पार्टनरशिप शुरू किया है, तो इसमें से कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो ए की है वो 20,000 है और बी की कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो है 1,50,000. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय द फर्म. तो इसमें हम देखेंगे कि पहले जो पार्टनर है उनकी कैपिटल क्या है. तो उसमें हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD, by balance BD. No. इसमें हम तो यहां पर हम पहले लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट, चूंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए ये नेट प्रॉफिट जो है इनकम, इसलिए इसके क्रेडिट में हम इसमें लिखेंगे क्या है इसका 2,16,000. तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ये फर्म बनाती है और कैपिटल अकाउंट्स पार्टनर्स के हैं. तो चूंकि आपको मैंने पहले ही बताया है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिलते हैं, तो उन प्रॉफिट्स में अभी हमें और भी कुछ एप्रोप्रिएशंस करने होते हैं। वो है कि अगर हम पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा, या ड्राइंग्स पार्टनर्स करते हैं उन पर इंटरेस्ट चार्ज करना होगा, या सैलरी, तो इस तरह से उस नेट प्रॉफिट को फिर एप्रोप्रिएट किया जाता है। तो इस तरह से लास्ट पे यहां पर हम इसका वो प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एक होता है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट्स और दूसरा होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट्स मींस इफ प्रॉफिट्स आर अवेलेबल then we can appropriate these further adjustments which are related to partners interest on capital, salary, commission, drawings, etc. And if it is charged against profits, then even if the firm has sustained a loss, we have to provide the charge against the profit. This is profit and loss appropriation account. Hence, if there are profits, then we can appropriate these profits. If there are not profits, then we can't appropriate. तो यहां पर हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 2,16,000 है, और फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट है वो फर्म जो है पार्टनर से कलेक्ट करती है, इसलिए फर्म के लिए वो इनकम है। तो हम लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, इसमें लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, या शॉर्ट हम इसमें लिखेंगे IOD यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसी तरह लिखेंगे बाय बीज कैपिटल अकाउंट। तो फर्म के पास ये 2,16,000 प्रॉफिट अवेलेबल है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो ये पार्टनर से रिकवर करते हैं, तो ए को 2,200 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, और बी का है 2,500। तो ये इसका क्रेडिट साइड है। अब जब हम डेबिट साइड में जाएंगे, तो डेबिट साइड में हम पहले फर्म के लिए देखेंगे उसके लिए एक्सपेंस क्या है। एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो फर्म को पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है पार्टनर्स को। तो उस सूरत में हम यहां लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, यानी फर्म को ए को क्या देना है, टू एज कैपिटल अकाउंट। इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमें कैलकुलेट यहां पर करना है, क्योंकि ए जो है उसकी कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल जो है वो 20,000 है, और इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है एट द रेट ऑफ 10%। तो ये 2,000 एक्सपेंस है फर्म के लिए, ये इसको ए को बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। इसी तरह हम जब देखेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट, ऑल्सो IOC, तो इसका बी की कैपिटल कंट्रीब्यूशन 1,50,000 है, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। तो ये यहां पर हमें जो ये इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल दैट इज 1,500। इसी तरह से पार्टनरशिप डीड में यहां प्रोवाइड किया जाता है कि यहां प्रोवाइड है कि पार्टनर्स को सैलरी दी जाए। तो ए, तो हम लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, साथ लिखेंगे हम सैलरी, और ये बी को भी मिलनी है ये सैलरी, तो हम लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट, और ये भी सैलरी है, लेकिन ये पर मंथ है,
ए की सैलरी पर मंथ है 2000 फॉर 12 मंथ्स, इसका टोटल बनेगा 24,000। और इसी तरह से बी को 3,000 पर मंथ है, तो ये 36,000 बनता है। तो इसके बाद बस ये चीजें हमें इनको प्रोवाइड करनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमने यहाँ पे शो किया है। तो अब हम इसमें पहले टोटल करेंगे, इसका टोटल देखेंगे क्या है। 0,052 को 7, 2,20,700, तो यहां पर जब हम क्रेडिट साइड का टोटल देखते हैं तो वो 2,20,700 है, और ये क्रेडिट है। क्रेडिट का टोटल 2,20,700 है। और जब हम डेबिट का टोटल करेंगे तो यहां पर 20,000 15 हो गए 35 और 60 हो गए 95,000। तो जब हम इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1,25,700 007, तो ये इसका टोटल, ये क्रेडिट 2,20,700 और डेबिट का जब हमने टोटल किया तो ये 95,000। तो यहाँ पर डिफरेंस जो है 1,25,700। क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है डेबिट बैलेंस से, यानी इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस से 1,25,700। यहाँ पर मैं एक बात आपको जहन नशीन करूं कि मैंने थोड़ी सी इससे पहले यहाँ थोड़ी सी गलती हुई थी। मैंने दिखाया था यहाँ पर 20,000 जबकि 2 लाख है। और इसी तरह से बी की कैपिटल कंट्रीब्यूशन 1,50,000, तो 2 लाख का 20,000 बनता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से, और 1,50,000 का 15,000 बनता है एट द रेट ऑफ 10%। तो जब हमने यहां पर टोटल देखा कि 1,25,700 डिफरेंस है, यहां पर अवेलेबल है, ये ज्यादा है ये क्रेडिट साइड, तो ये 1,25,700 जो है तो ये इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 पार्टनर्स में। तो हम लिखेंगे यहां पर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए इज कैपिटल अकाउंट। ए को क्या शेयर मिलेगा, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर जब देखेंगे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है दैट इज 3:2, तो ए को मिलेगा 3/5 इंटू 1,25,700। तो ए को जो मिलेगा वो 25,100, 1,25,000। तो यहां पर 25,140 ज़रबी 3, तो हम यहां पर लिखेंगे 3,0,0, 3 4s 12, 3 1s 3 and 1 4, 3 5s 15, 3 2s 6 and 7, 75,420। तो इसी तरह से बी का शेयर जो है दैट इज 2/5, तो इसका बनेगा 200, 248, 212, 25, 10, 224 and 5।
तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स हुई। ए के लिए प्रॉफिट है 75,420 और बी के लिए है 50,280। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। इस तरह से हमने आफ्टर मेकिंग द अप्रोप्रिएशंस, जो नेट प्रॉफिट से जो हमने अप्रोप्रिएट करने थे, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी एक्स्ट्रा, तो ये अप्रोप्रिएशंस करने के बाद जो हमें प्रॉफिट बचा था 1,25,700, वो हमने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट किया इन देयर दिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसमें ए को अब मिला 75,420 और बी को मिला 50,280। तो टोटल इसका बनता है 2,20,700 यहाँ बी और वहां बी। तो इस तरह से हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। तो मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए कैपिटल अकाउंट्स भी बनाता हूं ताकि आप कैपिटल अकाउंट बनाना भी सीखें। लेकिन सवाल में कैपिटल अकाउंट के हवाले से नहीं पूछा गया है, तो फिर भी हम यहां पर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो इसमें भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हम लिखेंगे पहले पर्टिकुलर्स, लेकिन दो पार्टनर हैं, ए और बी। इसी तरह हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे पर्टिकुलर्स और यहां पर लिखेंगे ए और बी। तो ये अकाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो ऑलरेडी उनकी अपनी बैलेंस जो है, जिसको हम ब्रॉट डाउन करेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। तो ए की बैलेंस जो है कैपिटल कंट्रीब्यूशन 2 लाख है, और बी की 1,50,000। अब देखो बी, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं हम। अब जो प्रॉफिट के लिए इस पार्टनर्स के लिए इनकम होगी वो क्रेडिट होगा इनका। मिसाल के तौर पर पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है, वो इनके लिए इनकम है। इसलिए जब इनके लिए इनकम है पार्टनर्स के लिए, उसको हम क्रेडिट करेंगे। जैसा कि आपने यहां पर पहले देखा था, वहां हमने डेबिट किया था क्योंकि वो फर्म के लिए एक्सपेंस, फर्म के लिए ये एक्सपेंस है और पार्टनर्स के लिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो इनकम है। तो हम लिखेंगे बाय सैलरी, बाय सैलरी। ए की सैलरी कितनी बनती है? ए की सैलरी 24,000 और बी की सैलरी जो है वो है 36,000। इसी तरह से पार्टनर्स के लिए और भी इनकम है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला? 20,000। ये इसके लिए इनकम है, तो ये इसका टोटल 20,000 इसको क्रेडिट होगा। और इसी तरह से बी को 15,000 रुपए क्रेडिट होगा। अब देखिए आप, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है ये फर्म के लिए इनकम है क्योंकि पार्टनर्स को ये पैसा देना है फर्म की तरह। लेकिन जो फर्म के लिए ये इनकम है इसलिए हमने इसको क्रेडिट साइड में दिखाया, लेकिन पार्टनर्स के लिए ये एक्सपेंस है इसलिए हम इसको डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स,
ए का क्या बनता है, वो 2200 और बी का 2500। यहां पर हम इसका कैपिटल इसको ये टोटल करेंगे। ये 2 लाख है और 24,000, 2,24,000 और 20,000, 24 और 20 होते हैं 2,44,000। और इसका हम देखेंगे 1,50,000 और 36,000, 1,86,000, 86,000 और 15, तो वो 2,01,000। 2,01,000। इसमें ये बनेगा 2,01,000 इसका टोटल। अब देखो क्रेडिट में ए के लिए 2,44,000, इसमें से इसका डेबिट होगा 2,200, 0 0 गन। अब तो ये 2,01,000। इसमें से इसका 2,500 माइनस होगा, 0 0। तो ये बनेगा 1,98,500, 1,98,500। अब ये जो हमने डिफरेंस देखी, यहां ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में 2,44,000 है, लेकिन इसका एक्सपेंस 2,200 है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इसकी बैलेंस अब रहती है 2,41,800। इसी तरह बी, उसकी 2,01,000 है क्रेडिट बैलेंस, लेकिन ड्राइंग्स बाय वे ऑफ ड्राइंग्स ही हैज टू पे 2,500। तो उसकी बैलेंस जो रहती है वो 1,98,500। तो यहां पर हम लिखेंगे टू बैलेंस सीडी यानी कैरी डाउन की, ये एक्सेस बैलेंस जो क्रेडिट में है। तो लास्ट बार हम लिखेंगे 2,44,000 और ये है 2,01,000। तो ये बैलेंस कैरी डाउन जो हमने ये क्रेडिट बैलेंस यहां कैरी की, जब नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेंगे तो उसमें से इस बैलेंस को ब्रॉट डाउन किया जाएगा। तो वहां पर नए अकाउंट में हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ए के लिए वो होगी 2,41,800 और बी के लिए 1,98,500।